گی۔ رام بھگت کا نام لیتے ہو، اشفاق اللہ خان کا نام لیتے ہو، یا اسی طرح اور دیگر لوگوں کا نام لیتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند، ہمارے اکابر ہمارے علماء نے، دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، جہاں سے انگریزوں سے لڑنے کا عزم لیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اب ہندوستان میں میرے لیے اس وقت تک سونا حرام ہے جب تک ان انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں، ہندوستان سے ان گوری چمڑے والوں کو اکھاڑ نہ پھینکوں، اس وقت تک میں چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ اسی طرح سے ہوتے ہوئے آئے 1857 سے لے کر 1899 تک، پھر ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دی گئی، آؤ یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ترنگا ہمارا ہے، ہم اور آپ مل کر ان گوری چمڑے والوں کو اکھاڑ کے پھینکیں۔ وہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دوسری میٹنگ رکھی گئی جس میں سر سید احمد خان اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، سارے لوگوں نے مل کر لڑائی لڑی ہے۔ یاد رکھو یہ سارے لوگ کون تھے؟ بدھیمان لوگ تھے۔ یہ سارے لوگ کون تھے؟ تعلیم یافتہ تھے۔ یہ سارے لوگ کون تھے؟ پروفیشنل تھے، تعلیم یافتہ تھے، ایجوکیٹڈ تھے، ہمارے اور آپ کی طرح جاہل نہیں تھے۔ یاد رکھو جب ہمارے اور آپ میں جہالت ہوگی ہم کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم سے انسان کی عقل کام کرتی ہے۔ جاہل ہوگا، جاہل جہالت والی سوچ رکھے گا، اگر تعلیم ہوگی تو ظاہر تعلیم کے ذریعے لوگوں نے جہاز بنائے ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی لائی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہودی مٹھی بھر کی آبادی پوری دنیا میں آج حکومت کرنے کے در پہ ہے، کتنی ٹیکنالوجی یہودیوں کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو دیکھو خواب خرگوش میں سوتا چلا جا رہا، جبکہ ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت آئی تھی وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی۔ اقرأ کا مطلب سمجھتے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے، جس طرح سے انگلش میں دا پریپوزیشن لا کر کسی چیز کو ہارڈ کیا جاتا ہے، کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کی آیت الحمدللہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کر کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے، کسی چیز کو قید کیا جاتا ہے، یعنی تمام تعریفیں اس پرماتما کے لیے، اس ایشور کے لیے جس نے پورے جگ کو بنایا، جس نے پوری دنیا کے نظام کو منظم فرمایا۔ ایسے ہی انگلش میں دا لا کر کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت یعنی کہ اقرأ بسم ربک الذی، امر کا صیغے کے ساتھ، حکم کے ساتھ کہا گیا پڑھو اس پروردگار کے نام سے، پڑھو اس پروردگار کے نام سے، پڑھو اس پرماتما کے نام سے، پڑھو اس گاڈ کے نام سے، پڑھو اس لارڈ کے نام سے جس نے سنسار کو وجود میں لایا، جس نے پوری دنیا کو بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کی آیتیں ہوتی چلی گئیں۔ میرے بھائیوں مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے جب میرے نبی کو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تو پڑھنے سے نازل ہوئی ہے، پھر یہ قوم کیوں سو رہی ہے، کیوں سٹا لگا رہی ہے؟ صرف اور صرف مغرب سے عشاء تک 3 بجے سے لے کر رات کے 10-11 بجے تک یہ صرف ڈریم 11 میں پڑے رہتے ہیں، صرف اور صرف جوار نشیڑی کام کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو کیا ہوا؟ ان کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ نہیں ہے جس سے تعلیم حاصل کی جائے، جس سے تعلیم حاصل کی جائے، جس کے ذریعے ایجوکیشن سے رشتہ جوڑا جائے۔ اس کے موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ڈریم 11 ہوتا ہے۔ اس کے موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے ایسے گیمز ہوتے ہیں جس گیم کے ذریعے یا تو پیسہ ہارا جا سکتا یا تو پیسہ جیتا جا سکتا، یعنی گویا سٹے بازی ان کے نشو و نما، سٹے بازی ان کے ہر حرکات و نقل میں شامل ہو گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا سماج کو پاک کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم و تربیت سے اپنا رشتہ جوڑو۔ میں آپ سے آخری بات کر کے گزارش کرتا ہوں، ہمارے بھائی نے یہ چھوٹا سا پودا لگایا ہے۔ یاد رکھو جب بھی کوئی پودا لگایا جاتا ہے، پودا لگانے کے بعد مالی کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی جو اس کا رکھوالا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پودا کو ہرا بھرا رکھا جائے۔ پودا کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پانی ڈالا جائے، اگر ممکن ہو، اگر آپ کو لگتا ہو کہ وہاں کیڑے مکوڑے لگ سکتے ہیں تو دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ پودے کو کوئی کیڑا نہ لگ سکے، پودے کی ہر طرح کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سرکار یوجنائیں لائی ہیں، ماننیہ مکھ منتری نیتیش کمار نے، آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں میں پودا لگانے کی یوجنائیں ہو رہی ہیں، ابھی ودھان سبھا میں ہرے ہرے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے تو آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا اے مسلمانوں یاد رکھو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد گھومو ٹہلو، اپنی آنکھوں کو ہری بھری چیزوں سے دکھاؤ۔ جب
कोई भी बंदा फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठता है तो याद रखो, आप चाहे योगा करो, आपके धर्म में है, मैं आपको ये नहीं कहता कि योगा मत करो, योगा भी एक अच्छा अमल है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नमाज योगा से ज़्यादा बेहतर है। क्यों योगा से ज़्यादा बेहतर है? जब कोई आदमी फजर के लिए नमाज पढ़ने के लिए उठता है, उसके सारे रग ढीले होते हैं। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले हाथ उठाता है, ये हाथ के सारे रग हिलने लगते हैं, फिर आदमी नियत बांधता है, ये सारे जोड़े हिलने लगते हैं, फिर आदमी रुकू में जाता है, पैर का ये जो बहुत मजबूत रग होता है, बहुत मजबूत, इसमें जो कुछ गूदे होते हैं, ये हिलता है। मालूम ये हुआ कि जब कोई फजर की नमाज पढ़ता है उससे बड़ा जिमर कोई नहीं। और मेरे नबी ने यहाँ तक बात नहीं रखी, बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बार आपने मुकाबला भी किया कि आयशा दौड़ लगाओ। हज़रत आयशा दौड़ लगाती हैं, मेरे नबी भी पीछे पीछे दौड़ते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की खुशी की खातिर आप पीछे हो जाते हैं, हज़रत आयशा आगे बढ़ जाती है। अब हज़रत आयशा हंसने लगती है, देखो देखो मैं आपसे जीत गई हूँ, मैं आपसे जीत गई हूँ। इस तरह के भी अमल आपने अंजाम दिए हैं। क्यों अंजाम दिए? ऐसे ही नहीं, मेरे नबी का एक एक तरीका उम्मत के लिए आइडियल होना चाहिए। इसीलिए कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम क्या समझते हो? तुम तो अपना आइडियल उस रोल मॉडल, उस एक्टर को समझते हो जो नाचता है कूदता है। तुम अपना आइडियल किसको समझते हो? जो यहूदियों के तर्ज अमल पर चलता है, यहूदियों की आंधियां लाता है, उसको अपना रोल मॉडल न समझो, उसको अपना आइडियल मत मानो। आइडियल मानना है तो अपने प्रोफेट को मानो, जिन्होंने इंसानियत की तालीम दी, जिन्होंने मानवता के सम्मान की तालीम दी, जिन्होंने भाईचारगी की तालीम दी, जिन्होंने कहा कि जिस कौम में तालीम होगी उस कौम का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उस प्रोफेट की तालीम पे चलना था। आपने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद जब कोई आदमी चहल कदमी करता है, जब कोई आदमी दौड़ लगाता है, उसके पेट में चर्बियां नहीं आ सकती, उसका रग हमेशा हरा भरा रहता है, उसके पेट में खराबी नहीं आ सकती, उसको पेचिस और पचीस की बीमारी नहीं हो सकती, और भी बहुत सारे अमराज। पढ़ो मिशकात शरीफ, पढ़ो आप शमाइल तिरमिज़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने फ़वाइद बताए। और आपने एक मौके पर यहाँ भी फरमाया हरी भरी चीज़ें देखने से आंखों की रोशनी हरी होती है, चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फजर के वक्त नौजवानों को देखो, रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक ड्रीम 11 खेलते हैं, रात के 2-2 बजे तक सट्टा लगाते हैं, नौजवान लड़कियों से व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए बातचीत करते हैं। जब 2 बजे रात हो जाती है, 3 बजे रात हो जाती है, तब इनको नींद आती है। मनहूस की तरह फजर की नमाज होती रहती है, अजान की आवाज़ आती रहती है, मुअज्जिन पुकारता हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी लेने, आओ कामयाबी लेने। लेकिन कहाँ कामयाबी मिलनी है? यहाँ तो रात हमने नाइट फेल करके गुजारी है, यहाँ तो रात हमने गंदी करके गुजारी है, अब कहाँ से कामयाबी मिलने वाली? इसलिए एक हदीस में आता है कि फरिश्ता आता है आपके घर के दरवाजे की तरफ, आपको रोज़ी देने के लिए। आपका दरवाज़ा बंद होता है, रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। फिर दिन भर आप क्या होता है, दिन भर आपको लठ पड़ते रहते हैं, नहूसत आपके चेहरे पे झलकता रहता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, फजर के वक्त जगने के आदी बनो, चहल कदमी करो। हमारे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है, वो लोग इस काम को अच्छी तरह कर रहे हैं, वो लोग तो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। हम लोग रात के 2 बजे 3 बजे रात जलसे से वापस होते हैं, मुसलमानों की बस्तियों में जाओ, बिल्कुल खर्राटे की नींद, ऐसा लगता है जनरेटर चल रहा हो, इतनी तेज नींद की आवाज़ आती है। लेकिन किसी हिंदू भाई के गाँव से जाओ, कितनी अच्छी हमारी हिंदू बहनें हैं, कितनी अच्छी हमारी हिंदू माएँ हैं, वो टहल रही होती हैं, हमारे हिंदू भाई चक्कर लगा रहे होते हैं। बताओ, इनके प्रोफेट ने ये तालीम दी, लेकिन अमल इनका नहीं। हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर उन्होंने अमल किया है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप खुदा के वास्ते, कुरान करीम ने क्या ही उम्दा इलाज बताया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तो आज़्म करो, इरादा करो कि आज के बाद से ये जो पौधा मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब ने लगाया है, ये पौधा अभी बिल्कुल छोटा सा पौधा है, कीड़े मकोड़े से बचाना है इंशाअल्लाह। कैसा कीड़ा मकोड़ा? आपको मिलेंगे हर गांव में कुछ एंटीवायरस, कुछ वायरस फैलाने वाले लोग, एंटीवायरस के जरिए उन वायरस फैलाने वाले लोगों का दिफा करना है। उन वायरस फैलाने वालों से कहना है कि भाइयों, ये पौधा हमने लगाया है, सिर्फ शम्स तबरेज़ की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। इस पौधा को हरा भरा करना है। अगर इस पौधे के लिए हमें अपनी गर्दन कटानी पड़े, हम गर्दन कटा सकते, हम अपने बच्चों
को गूंगा नहीं रख सकते, अपने बच्चों को सब कुछ दिया, तालीम नहीं दी, आपके बच्चे गूंगे हैं, आपके बच्चे सन्यासी हैं, आपके बच्चों के पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस पौधे पर अगर किसी हासिद की नज़र पड़ी, किसी बदचलन की नज़र पड़ी, किसी आवारा की नज़र पड़ी, तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर दिफा करोगे, इंशाअल्लाह सब मिलकर दिफा करना है। याद रखो, जब भी कोई आदमी अच्छा कदम बढ़ाता है ना, तो उस अच्छे कदम बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग उनके टांग हाथ खींचने लगते हैं। खुद मेरे साथ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ, इस बार मेरे कॉन्वेंट में 5 लड़कियों ने मैट्रिक पास किया। 5 में से 3 लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीज़न और 2 लड़कियां सेकंड डिवीज़न से। मैं शम्स तबरेज़ भाई की यही उम्मीद है, उनका यही आज़्म, यही हौसला है। हम इस गांव में जो ये चिराग जलाए हैं, इस गांव की छोटी छोटी बच्चियों को मेहनत करके, इस गांव की छोटी छोटी बच्चियों को लाकर मन्नत समाजत करके इनको हम और बहुत अच्छी तरह आरास्ता करेंगे। इन बच्चों को हम APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलाएंगे, भगत सिंह के रास्ते पर चलाएंगे। इनको बताएंगे कि बेटिया, इनको बताएंगे कि बेटा, तालीम हासिल करो। अगर तुम्हें समाज के करप्शन को दूर करना है, समाज की तारीकी को दूर करना है, समाज के अंधेरे को दूर करना है, लेकिन आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप सब सहयोग करोगे ना? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप सब ने हाथ उठाया। मैं आपसे दो गुजारिश करूँगा। देखो, ये कॉन्वेंट, ये इदारा, ये इंस्टीट्यूट, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, कई चीज़ों से चलते हैं। एक बिल्डिंग बनती है ना, ऐसे ही बनती है क्या? ऐसे नहीं बनती है, बल्कि उस बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं। सीमेंट भी चाहिए होता है, गिट्टी भी चाहिए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसके आलाकार होते हैं, वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसी तरह से इस इदारे को, इस पौधे को आपको फलदार दरख्त बनाने के लिए आप सबसे भी गुजारिश है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी भाई शम्स तबरेज़ और उनके भाइयों ने, उनके रफ़क़ा ने मिलजुल कर 9-9.5 लाख रुपए में ज़मीनें ख़रीदी, किस तरह से ये मकान बनाया, उन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया है। आप सब इसमें सहयोग कीजिए। किस तरह सहयोग करेंगे? बच्चियों को वक्त पर तालीम के लिए भेजेंगे, और वक्त पर तालीम पे भेजना ही कमाल नहीं है, बल्कि गुजारिश है कि वक्त पर आप अपने बच्चों की फ़ीस भी जमा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी हालत क्या है? नीतीश कुमार ने ऐलान किया आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है? पूरी मछली हम निगल लेते हैं, पूरी पोल्ट्री मुर्गी हम निगल लेते हैं। ये पेट है कि कुफ्र की अलमारी है साहब? ये पेट है कि कोई जहन्नम का गड़ा है? इतना खाते हो, लेकिन शर्म नहीं आती? कभी अपने बच्चों की तालीम में आपने खर्चा किया, अच्छी कापियाँ खरीद के दी, अच्छा कलम दिया, बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओ। कलम अगर आपने कलम पकड़ाया, उस वक्त जामा मस्जिद की सीढ़ी पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, पाकिस्तान जो लोग जा रहे थे, यही तो आपने ऐलान किया था, कहाँ जा रहे हो, क्यों रिश्ता काट रहे हो? तुम्हें तालीम दी गई थी इसलिए ये कलम बिकाओ। कलम क्यों हुआ? कलम बिकाओ इसलिए हुआ कि सही तालीम तुम में नहीं थी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को कलम पकड़ाओ। कलम आपके बच्चे जब हाथ में पकड़ लेंगे, तो सच्ची बात यह कि दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चों को ज़ेर नहीं कर सकती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप हर तरह से ताउन करें। जब आप देखें कि बच्चों के रिहाइश के लिए मकान बन रहे हो, आपको अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, कुछ भी लाकर दे दो, नहीं कुछ दे सकते, एक बोरा सीमेंट दे दो, और तामीरी काम हो रहे हो, नहीं कुछ दे सकते, अरे 5-6 ईंटा ही ला के दे दो, लेकिन इमदाद किया करो, ताउन किया करो। याद रखो, आज पूरी दुनिया में यहूदी कम्युनिटी जो फैल रही है, वो ऐसे ही नहीं फैल रही है। अल्लामा इकबाल का एक वाक़या मैं सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने, एक बच्चा था जो असर की नमाज के बाद पढ़ रहा था। असर की नमाज के बाद हमारे यहाँ ये होता है, खेल कूद में बच्चे को लगा देना चाहिए, वर्जिश में लगा देना चाहिए। तो उस बच्चे को पढ़ते देखकर अल्लामा इकबाल ने पूछा, इस वक्त क्यों आप पढ़ रहे हो? पता है अल्लामा इकबाल को उस यहूदी के बच्चे ने कितना उम्दा जवाब दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने लिखा कि मेरे दांत खट्टे हो गए उस बच्चे के जवाब सुनकर।
उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरी कौम के मानने वाले बहुत कम हैं, हम बहुत थोड़ी तादाद में हैं, हम अगर असर के बाद के वक्त को खेल कूद में लगाएंगे मेरी कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। हम चाहते हैं कि मेरी कौम तरक्की करे, इसलिए हम असर की नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। हम इस वक्त को भी खेल कूद में बर्बाद नहीं करना चाहते। बताओ, जिस कौम के बच्चे की सोच ये होगी, जिस कौम के बच्चे की फिक्र ये होगी, उस कौम का क्या हाल होगा। वो कौम तरक्की करेगी कि नहीं करेगी, चांद पे वो कौम किस तरह से कमान डालेगी। लेकिन हमारी कौम चूंकि इससे बहुत दूर जा चुकी है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खुदारा, आज ही के बाद से जामिया सदाए सुफ़ा लिल बनात आप सबसे ये गुजारिश करता है, ये इदारा आप सबसे ये गुजारिश मैं अपने तौर पर भाई शम्स तबरेज़ साहब के और उनकी पूरी टीम के ज़रिए गुजारिश करता हूँ, इस इदारे का भरपूर आप सहयोग करेंगे। बच्चियों को सही वक्त पे भेजकर, सही वक्त पे फीस देकर, जब भी कोई तामीरी काम हो उस तामीरी काम में आप ज़रूर हिस्सा लेंगे। अभी बहुत कुछ बनना है। मैंने कहा कि पौधा लगाने में बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, कीड़े मकोड़े से बचाने पड़ते हैं, उसको वक्त पे खाद भी देने की ज़रूरत होती है, खाद भी दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अभी जामिया सदाए सुफ़ा लिल बनात एक पौधे के मानिंद है, इस पौधे को आपको हरा भरा करना है, फलदार दरख्त बनाना है। बनाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। किसी ने कहा था, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ जंजीरें मिलाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। आखिर